5. In that 5.6, that is modern synthetic theory of evolution. Okay, so today we are starting with modern synthetic theory of evolution, which was the most acceptable theory of evolution. Okay, so today we are starting with this theory which was proposed by so many scientists, and it is under the condition of so many factors like genetical, ecological, anatomical. So there are so many evidences from different biological branches. So this theory was a so much acceptable theory. Now we are moving to the next point. Now you can see that the right side there are so many diagrams. There is one picture containing so many pictures of a scientist like Charles Darwin, then Alfred R. Wallace, J.B.S. Holden, then Gregor Mendel. Okay, so these are the scientists who are contributing the modern synthetic theory of evolution. Now we are moving to a theory point of this theory, that is, it is a it is the result of true synthesis of all biological discipline, and this theory studies pertaining to genetical, that is related with the study of gene. Okay, so this theory is ultimately a study of a gene, then ecological, different type of ecological aspects, anatomical, that is जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया homologous organ, analogous organ, so these are also included in this theory. जियोग्राफिकल, दैट इज जोग्राफिकल रीजन के वजह से जो भी चेंज हुआ वो सब पॉइंट यहाँ पर आ रहा है. देन paleontological, that is a fossil evidence. Okay, there are some fossil evidence today also we get from a different region, और वो सब ये theory के अंदर आ रहा है. Okay, so this theory is nothing but the theory of genetical, ecological, anatomical, geographical, paleontological, etc. were pursued to explain the mechanism of evolution. Means all these part are explained in this theory. This theory means that is a modern synthetic theory of evolution. Evolution का जो भी theory है, इसके लिए ये सभी part जो भी है help कर. And also due to importance, okay, also due to importance, it was given to both mutation and natural selection. मतलब कि ये theory के अंदर natural selection जो कि चार्ल्स डार्विन ने लाया था वो थ्योरी, प्लस म्यूटेशन, दैट इज ह्यूगो राइस का जो भी थ्योरी था, बोथ द थ्योरी हैव इक्वल वेटेज. मतलब ये थ्योरी के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन, ओके, दैट इज म्यूटेशन आल्सो कॉजिंग अ, दैट इज चेंज इन अ एनवायरनमेंट एंड इवोल्यूशन. सो म्यूटेशन भी हेल्प करा है इवोल्यूशन को, वो पॉइंट को भी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस दिया है म्यूटेशन को. As well as at the same time, this theory was giving an importance to a natural selection. That is Darwin's का जो भी theory था, चार्ल्स डार्विन ने जो अलग अलग स्टडी किए थे, वो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है. That is a theory, modern synthetic theory of evolution. Now that there are different type of scientists are involved in that theory. That is R. Fisher. Okay, R. Fisher. Then now you can see in this diagram this scientist, that is R. Fisher, J.B.S. Holden, that is J.B.S. Holden, T. Don Banzowski, then J. Huxley, E. Mayer, Simpson, Stebbins, then Fisher, Sewall Wright, then Mendel, and T.H. Morgan. These person are, okay, all these scientists are involved in a modern synthetic theory. Means ये जो theory का explanation का point है, इसके अंदर ये सभी scientists का जो भी explanation का point है, वो पूरा का पूरा mix up करके ये new theory का formation हुआ है. That is a modern synthetic theory of evolution. On the right side you can see a picture of these all the scientists. ये जो भी scientists हैं इनका सभी का यहाँ पर pictures with name के point दिए. Now we are moving to a next point and the next slide of this 5.6, that is about the Stebbins. Okay, we have studied about that Mendel's, then Charles Darwin, then mutation theory के हमने point देखे. Now we are on a Stebbins, okay, scientist Stebbins in his book discuss 5 key factors
such as, okay, so which are the five key factors given by Stebbins? So these factors are nothing but the gene mutation. What is the meaning of mutation? Sudden change in the nucleotide. अगर जीन के न्यूक्लियोटाइड में कहीं पर अगर छोटा सा चेंज हो रहा है, so that is gene mutation. Then the second one key factor according to Stebbins, that is mutation in a chromosome structure. यानी कि पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, दैट इज डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वहां पर अगर कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज को यहाँ पर लिया है. देन नंबर्स ऑफ अ क्रोमोसोम, म्यूटेशन इन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मींस पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चेंज हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है. देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, you know that genetic recombination, when a sexually reproducing organism के अंदर when there is a gamete formation is a take place, जब भी gamete का formation होगा तो उस टाइम क्या होता है, so at that time when a gamete is formed, so at that time this gamete consists of homologous chromosome, and this homologous chromosome in that organism, they are cut in between a homologous region of that chromosome and they are mixed together, और उसके वजह से नया कुछ फॉर्मेशन होगा, that is called it as a genetic recombination. हम लोग इसको डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं, स्लाइड में आने वाला है. Now the next point, that is a natural selection, that is a nature will select which organism will survive and which will not according to a variation. There are two type of variation हमने देखा था, that is harmful variation and successful वाला जो variation था. Then reproductive isolation, that so many organisms are isolated, means they are separated because of river, mountains, and because of their reproductive capability, like some of the organism their reproductive organ are active at summer, और कुछ organism या तो कुछ plants के जो भी reproductive organ winter में active हो रहे हैं, तो उनके अंदर reproduction नहीं possible है, that is called it as a reproductive isolation, reproduction नहीं हो पा रहा है उनके. Now, these five key factors are given by Stebbins contribute in a evolution of a new species. मतलब इसके अंदर ये सब भी ऐड होगा, ऑलरेडी ये थे बट उसके अंदर और भी कुछ पॉइंट ये सब स्टेबिन्स के हिसाब से ये सभी ऐड हो गए. Now the next point, all individual of same species contribute a population. So all you know that population, that group of organism but of a similar species के अगर group of organism है, that is called it as a population. Now the next point here given, that is Mendelian population. What is the meaning of Mendelian population? The population occur in a small group of a interbreeding population. अब interbreeding यानी क्या है, तो उनके अंदर क्रॉसिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ओके, सो उनके अंदर क्रॉसिंग या तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा. So ultimately यहाँ पर क्या दिया देखो, in a small group whatever species and whatever organism are there, और उस organism के अंदर अगर interbreeding हो रहा है, ऐसे small group of organism को क्या बोलना है, this is called it as a Mendelian population. So वही यहाँ पे देखो definition दिया है, the population occurs in a small group. Okay, what is the meaning of population? Same type of species का जो group है, बट ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, प्लस वो ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स है उनके अंदर इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, मींस उनके अंदर फर्टिलाइजेशन, दैट इज क्रॉसिंग होना चाहिए. Such a small interbreeding group of population is referred as a Mendelian population. Okay, so what we have seen that population का meaning है that is same type of species का जो भी एक जगह पे ग्रुप है, that is called it as a population. और वो स्मॉल ग्रुप के अंदर वो सभी एनिमल जो स्पीसीज है अगर इनके अंदर क्रॉसिंग हो रहा है, सो दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट एज आल्सो कॉल्ड इट एज अ इंटरब्रीडिंग एंड मेंडेलियन पॉपुलेशन. सो उसको मेंडेलियन एंड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन भी बोलना. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर आर सो मेनी definitions are given on this slide. So first one definition is a gene pool. इसके पहले हमने देखा Mendelian population. Now we are seeing a gene pool. What is the meaning of gene pool? Migration of a population effectively alter a gene pool. पहले तो gene pool क्या है वो हम लोग देखते. Now you can see that on the right side of your screen
देयर इज अ वन पिक्चर ऑन अ अपर साइड, ये अपर साइड में ये वाला जो पिक्चर दिया है देखो यहाँ पर, सो इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको फ्रॉग का छोटा सा पॉपुलेशन मिल रहा है। नाउ यू कैन सी दैट इन दैट पॉपुलेशन देर आर टोटल 3 टाइप ऑफ फ्रॉग्स आर प्रेजेंट। एक ग्रीन कलर है, सो उनके अंदर जीन अलग है। एक कुछ वॉयलेट्स कलर है, तो उनके अंदर कुछ जीन अलग होगा, और एक कुछ रेड कलर है। ओके, सो नाउ वी कैन सी दैट टोटल जीन, जो टोटल जीन है दैट इज कॉल्ड इट एज अ जीन पूल। मीन्स ये टोटल जितने भी फ्रॉग है इनके अंदर अलग अलग टाइप के जितने भी जीन है, all this total number of gene in that small population or Mendelian population is called it as a gene pool. Now you can see that right side में जो सर्कल दिया है, मतलब ये छोटा सा पॉपुलेशन के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के जीन है, दिस ऑल दिस जीन आर, ये टोटल जितने भी एनिमल्स है उन सभी का देखो जीन्स दिया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ जीन इन दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट एज अ जीन पूल। नाउ इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में देखो दिया है, क्या दिया है, माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर द जीन पूल। मतलब कि ये एक पॉपुलेशन है। नाउ यू कैन सी द राइट साइड, जो नीचे वाला डायग्राम है उसके ऊपर ध्यान, उसके ऊपर ध्यान। माइग्रेशन मीन्स क्या है, ट्रांसफर। मतलब कोई एक एनिमल है या तो कोई भी पर्सन है, एक जगह से अगर दूसरे जगह में ट्रांसफर हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ माइग्रेशन। नाउ यू कैन सी दैट ऑन अ राइट साइड, यहाँ पर जो डायग्राम दिया है, यहाँ पर ये बीच में एक फॉरेस्ट बिगर एक माउंटेन है, और ये माउंटेन के इस साइड में एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए, और यहाँ पर पॉपुलेशन है बी। नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों के अंदर जीन अलग अलग टाइप के, जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इनके अंदर जो जीन है दैट इज पॉपुलेशन कंटेनिंग कैपिटल एच जीन, दैट इज होमोजाइगस पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ अ फिनोटाइप। कुछ तो एक फिनोटाइप है जिसके लिए होमोजाइगस उनके अंदर जीन कैपिटल एच। नाउ वी कैन सी दैट द राइट साइड ऑफ अ माउंटेन, यहाँ पर जो है ये रेड कलर के स्पीसीज है दैट इज पॉपुलेशन बी, और इनके अंदर जो जीन है ये स्मॉल एच होमोजाइगस पॉपुलेशन है, बट ये वाला जीन अगेन अलग टाइप है। नाउ व्हेन यू कैन सी दैट अगर यहाँ के इस पॉपुलेशन में से कोई एक स्पीसीज अगर यहाँ से उस साइड, माउंटेन के उस साइड दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो पॉपुलेशन ए है इसके अंदर से वो जीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस यहाँ से अगर ये जीन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन से जीन थे, सो जो रेड वाले स्पीसीज थे इनके अंदर स्मॉल एच वाला जीन था, और एक स्पीसीज जो ब्लू कलर का अलग आने के वजह से यहाँ पर दूसरा जीन कौन सा ऐड हो गया, दैट कैपिटल एच वाला। अब क्या होगा, अब ये जो कैपिटल एच वाला जो भी बर्ड है, व्हेन दे आर क्रॉसिंग विद दिस बर्ड, जो रेड कलर वाले बर्ड है, अगर इनके साथ इसका क्रॉसिंग हो गया, तो जो नए ऑस्प्रिन आएंगे, मतलब उनका जो चाइल्ड आएगा उसके अंदर कौन सा जीन आ जाएगा, तो उसके अंदर इसके अंदर कैपिटल एच था और इसके अंदर स्मॉल एच, मतलब नए जो स्पीसीज फॉर्म होंगे उनके अंदर कैपिटल एच और स्मॉल एच। नाउ यू कैन सी दैट दिस वन, ये वाला यहाँ आ गया, फिर इसने यहाँ क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करने के बाद इसके जो ऑस्प्रिंग आए इसके अंदर देखो कैपिटल एच का कैरेक्टर ऊपर से दिख रहा है, बट जीनोटाइप स्मॉल एच भी आ गए। सो दिस इज कॉल्ड इट एज अल्टर मतलब इसने चेंज कर दिया। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया देखो, द माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर अ जीन पूल। मतलब सपोज करो कि मैंने और कोई एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि हमारे यहाँ पे कोई अमेरिकन पर्सन वहां से कोई आ गया और यहाँ पर सेटल हो गया, तो उनके अंदर और हमारे अंदर कुछ तो जीन अलग होंगे, सो दैट न्यू टाइप ऑफ जीन when this person is married with that person, मतलब कि यहाँ से कोई ऐसे समझो कि मेल पर्सन गया अमेरिका और वहां से उसे कोई लड़की अच्छी लगी, उसके साथ उसका मैरिज हो गया, और फिर वो लड़की यहाँ पर आ गई, तो उस लड़की के बॉडी के अंदर जो जीनोटाइप है वो अलग है, और इंडियन पीपल के अंदर जो जीनोटाइप है वो अलग है। अब इन दोनों का जब क्रॉसिंग होगा तो उनके ऑफस्प्रिंग में दोनों की जीनोटाइप मिक्स हो जाएंगे। सो फिर जीनोटाइप, अब जो जीन पूल जो था इसके अंदर, ये वाले जीन पूल में जो राइट साइड में पॉपुलेशन बी है, इनके अंदर ये वाला कैपिटल एच वाला जीन नहीं था, बट वो वाला क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, द माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर अ जीन पूल। जीन पूल का मतलब हमने क्या देखा कि ये देखो इतने सारे जो पॉपुलेशन में फ्रॉग है, इनके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इन दैट
पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट एज अ जीन पूल, और इसके अंदर कोई नया स्पीसीज आ गया तो फिर जीन पूल क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दिया है. द जीन पूल आल्सो चेंजेस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ one generation by another in a in the Mendelian population. Okay, but they have given, क्या बोला है देखो यहाँ पर, जीन पूल आल्सो चेंजेस, जीन पूल चेंज हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनदर इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन. मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जा रहे हैं तो उस टाइम जीन पूल चेंज हो सकता है. मतलब ऑक्सप्रिंग जब भी दूसरे कोई पॉपुलेशन के स्पीसीज से क्रॉसिंग होगा तो उस टाइम उस पॉपुलेशन में से जो नया जीन आया था वो उनके ऑक्सप्रिंग में आ जाएगा और इसके वजह से जीन पूल चेंज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेकेंड पॉइंट. किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ. Okay, so this is all about that point. Now the next point यहाँ पर क्या दिया है, does any change in gene pool affect the population? मतलब जीन पूल यानी कि जीन में अगर चेंज हो गया so अल्टीमेटली पॉपुलेशन में भी चेंज हो जाएगा, कुछ नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में जाने के पहले जस्ट अ मिनट. हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था जीन पूल, जीन पूल का मतलब क्या है. नाउ कैन सी दैट मंथन, ये जो पॉपुलेशन है डायग्राम में दिख रहा है, अपर साइड में जो ये फ्रॉग है, तो ये फ्रॉग के अंदर ये जो पूरे पॉपुलेशन है इसमें टोटल जितने भी फ्रॉग हैं, ये टोटल नंबर ऑफ जीन. ओके, ये फ्रॉग के अंदर टोटल जितने भी जीन है इस पॉपुलेशन में, मतलब देखो यहाँ पे दिए. सो ये फ्रॉग के अंदर जैसे ये ग्रीन फ्रॉग का ग्रीन जीन, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, देन ये रेड वाले का एक रेड आ गया, इसका आ गया. सो ऐसे टोटल नंबर ऑफ जीन इन दैट पॉपुलेशन. ओके, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी स्पीसीज है उन स्पीसीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन इन दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट एज अ जीन पूल. ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर. मंथन क्लियर है? Okay, now we are moving to a next part. See, all of you listen him. Next part, that is modern synthetic theory of evolution. The next part is about the gene. Okay, so all of you know that the genes, okay, genes are nothing but the chromosomes. Okay, now you can see that in the diagram. ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है न्यूक्लियोटाइड के, दिस इज कॉल्ड इट एज अ जीन. एंड वन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी जीन, जीन 1, जीन 2, जीन 3, ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर. नाउ यू कैन सी दैट ये डायग्राम में यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, ये जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस दिए. देखो नाउ जीन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है, देखो जीन्स आर अरेंज लिनियरली on the chromosome having definite position. Now can see in this chromosome जो जीन है ये linearly arranged है, means one by one. Now can see that ये क्रोमोसोम को जब मैंने एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर निकाला तो ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर के अंदर एक जीन यहाँ पर है, देन उसके बाद में सेकंड वाला जीन है. सो इन अ क्रोमोसोम दैट जीन्स, so many genes are present and these genes are arranged linearly, means one by one. यहाँ पे जैसे दिया देखो, that is gene number 1 दिया है, then gene number 2 दिया है. Okay, so this is all about a gene which is present linearly on a chromosome. Next point, according to Mendel, every gene that influences a trait has two alleles. Okay, मेंडल के हिसाब से, according to Mendel, okay, ग्रेगर मेंडल का जो भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, so according to a Mendel, every gene that influence a trait has true allele. मतलब एटलीस्ट हर एक जीन के अंदर दो अलेल रहेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलेल? टाइप ऑफ जीन भी बोल सकते हैं जो कि ट्रेट देखा है. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, देखो जैसे मैंने ब्लड ग्रुप लिया, ये एक कैरेक्टर है. सो उस कैरेक्टर के अंदर जो अलग अलग टाइप है
that is call it as a trait. जैसे अगर मैंने मेंडल का एक एग्जांपल ले लो, that is a height of the plant is one trait. So अभी वो हाइट के अंदर या तो प्लांट टॉल रहेगा, तो वो टॉल ब्रांच, टॉल वाला जो प्लांट है वो एक ट्रेट हो गया, टॉल दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट के लिए, और दूसरा वाला ट्रेट या तो वो प्लांट रहेगा ड्वार्फ, सो ड्वार्फ के लिए एक हो गया. सो उस ट्रेट के लिए, टॉल के लिए कैपिटल टी वाला जो जीन है, दैट इज वन अलील इन दैट, on small t, that is another allele of that. Okay, so all of you clear what is the meaning of allele? So according to Mendel, every gene influence that every gene that influence a trait, मतलब जो ट्रेट शो करा है, तो इससे हर एक जीन को एटलीस्ट दो अलील तो रहेंगे ही, नॉर्मली टू अलील्स रहेंगे ही, दो से ज्यादा भी हो सकते. जैसे कि अगर मैंने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया, तो ब्लड ग्रुप के लिए ए ब्लड ग्रुप वाला आई ए अलील है, बी ब्लड ग्रुप का आई बी अलील है, और ओ ब्लड ग्रुप का आई ओ अलील है. सो मोस्ट ऑफ तो हर एक जीन के लिए अकॉर्डिंग टू मेंडेल, ईच एंड एवरी जीन दैट इन्फ्लुएंस ट्रेट, जो कि ट्रेट को शो कर रहा है, तो उसके अंदर एटलीस्ट दो अलील तो रहेंगे ही. And both the alleles are present on a homologous region on a same locus. Now you can see in this diagram, ये जो homologous chromosome हमारे बॉडी में होता है. What is the meaning of homologous chromosome? जो हमारे बॉडी में दो सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक क्रोमोसोम हमारे फादर के स्पर्म में से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम हमारे बॉडी में हमारे मदर के एग में से आता है. और ऐसे दोनों भी क्रोमोसोम के अंदर सिमिलर पोजीशन के ऊपर, देखो यहाँ पर बराबर उतने ही डिस्टेंस पे ये क्रोमोसोम में ये जीन है, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम में बराबर उतने ही डिस्टेंस पे. सो दैट डिस्टेंस एंड दैट particular location of a gene on that chromosome is called it as locus. So next point में वो क्या दिया है देखो, the proportion of an allele in a gene pool to a total number of allele at the given locus is called gene frequency. मतलब सपोज करो कि मैंने ब्लड ग्रुप ले लिया, तो ब्लड ग्रुप के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर दो से ज्यादा अलील है. सो फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? टोटल नंबर ऑफ अलील, मतलब एक ही लोकस से रिलेटेड, एक ही कैरेक्टर से रिलेटेड, एक ही लोकस मतलब बराबर सेम डिस्टेंस के ऊपर क्रोमोसोम के अंदर जो टोटल अलग अलग टाइप के जो जीन है, दैट अलील है, दैट इज कॉल्ड एज द जीन फ्रीक्वेंसी. जैसे कि अगर मैंने देखो, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर स्टडी किए थे, उसके अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए उनके पास टू अलील थे. जैसे कि मेंडल का अगर मैंने लिया हाइट ऑफ द प्लांट, सो कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि दो अलील थे, एक कैपिटल टी टॉल का और स्मॉल टी ड्वार्फ का. वैसे ही अगर दूसरा लिया ग्रीन कलर, येलो कलर, दो अलील थे. देन पॉड का शेप था इन्फ्लेटेड एंड दैट कंस्ट्रिक्टेड, सो ये दो अलग अलग अलील्स थे. बट अगर मैंने ह्यूमन की पॉपुलेशन में अगर ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप के लिए अलील्स 3 हैं, होमोलोगस यानी कि सेम लोकेशन पे, ये क्रोमोसोम के अंदर सेम डिस्टेंस पे, सेम लोकेशन पे जो जीन होते हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए जो जीन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अलील. और ऐसे पूरे के पूरे पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप के कितने अलील है, उनका नंबर यानी हो गया जीन फ्रीक्वेंसी. सो वही यहाँ पे दिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इन अ जीन पूल to a total number of allele at a given locus is that a gene frequency. इसको ही क्या बोलना है? जीन फ्रीक्वेंसी बोलना है. So this is all about this slide.